Welcome, friends. So, in the last lecture, we have discussed defining SAPs programmatically. Okay, and since last three lectures, we have been discussing SAPs in Android. Okay, SAPs, or we can say drawables in Android. In the first two lectures, I have discussed defining SAPs as resources, XML resources. Okay, we have seen all this in first two lectures. In third lecture, we have done this thing. Okay, define an object of shape drawable, pass an object of particular shape type to the above object. Okay, now set the attributes using setter methods. वो हमने किया, set intrinsic height, set intrinsic width, optionally obtain paint object to set painting attributes, that is color, then stroke, style, etc. Okay, and now as we have seen that we can set gradients to give coloring effects, different coloring effects to our shape. Okay, that are linear gradients, radial gradients, and sweep gradients. Similarly, we can also use gradients, or we can also define gradients programmatically also. Optionally define gradients and apply on shape. Okay, let us see how can we define these gradients programmatically. So there are various subclasses of Android.graphics.shader class which can be used to create a gradient of colors. It includes linear gradient, radial gradient, and sweep gradient. All these three are name of the classes. Okay. All gradients needs at least two colors, a start color and an end color. Though it may contain any number of colors in array. If you remember, I have told you in the previous lectures that when we will define gradients programmatically, it is possible to have more than three colors also. Otherwise, when we were using it as resource, we have defined maximum three colors: start color, end color, and a center color. The different types of gradients are differentiated by the direction in which the gradient flows. It flows in linear fashion. Okay, then it is a linear gradient. If it flows in circular fashion, it is radial gradient, and it flows in grid, then it is sweep gradients, sectors of a pie. Gradient can be set to mirror or can be set to repeat. Yeah, once completed, we can again set it to be starting from beginning, or we can set mirror image. मतलब कि वो रेड से शुरू होके ब्लैक हुआ है, तो फिर वहाँ से जो बाकी का पोर्शन है वो ब्लैक से रेड वापस होना चाहिए या वापस रेड से ब्लैक होना चाहिए, वो हम यहाँ पे तय कर सकते हैं. सेट शेडर मेथड कैन बी यूज टू सेट पेंट ग्रेडियंट. सेट शेडर मेथड के द्वारा हम ग्रेडियंट को सेट कर सकते हैं. लीनियर ग्रेडियंट, चलिए देखते हैं लीनियर ग्रेडियंट को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ वन दैट चेंजेस कलर अलोंग ए सिंगल लाइन. वी कैन अचीव दिस बाय क्रिएटिंग अ लीनियर ग्रेडियंट इंस्टेंस एंड पास इट टू द सेट शेडर ऑफ द पेंट बिफोर ड्राइंग ऑन कैनवास. तो ये क्या है कि आपको यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट अप्लाई करना है, तो लीनियर ग्रेडियंट का आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और उसमें आपको पास करना है कलर्स और उसकी इफ़ेक्ट पास करनी है. देखिए यहाँ पे हम अभी बनाते हैं अपना जो शेप है,
इसकी बजाय हम एक शेप बनाते हैं, शेप ड्रॉएबल इज इक्वल टू न्यू शेप ड्रॉएबल न्यू ओवल शेप। ठीक है, ये अपना अभी ओवल शेप बन गया। ओवल शेप, ठीक है। स्टाइल दिया है इसमें, स्ट्रोक स्टाइल, वो निकाल देते हैं तो कलर फिल होके आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, लीनियर ग्रेडियंट का ऑब्जेक्ट बनाना है। लीनियर ग्रेडियंट इज इक्वल टू न्यू लीनियर ग्रेडियंट। ओके, वहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स क्या आएगी, फ्लॉट x फ्लॉट y। वो जो लाइन है उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, वो सपोज हम रखते हैं 10 10 50 50। ओके, नॉन नल कलर इंटीजर कलर्स का एरे पास कर सकते हैं, कलर्स का एरे, ये कलर्स का एरे, जो कलर्स का एरे होगा वो इंटीजर में होगा, या दो कलर भी दे सकते हैं। स्टार्ट कलर सपोज कि कलर डॉट रेड और एंड कलर डॉट ब्लैक वाइट। और टाइल मोड है उसको हम टाइल शेडर डॉट टाइल मोड डॉट शेडर डॉट टाइल मोड डॉट मिरर इमेज, मतलब कि वो जहाँ ख़त्म हुआ है वहाँ वो रिवर्स से शुरू होना चाहिए। ओके, इस तरह अब शेप ड्रॉएबल पे उसे अप्लाई करना है। शेप ड्रॉएबल डॉट शेडर शेड ग्रेडियंट डॉट गेट पेंट डॉट सेट शेडर, और वहाँ पे देते हैं लीनियर ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये देखा आपने, सेट शेडर मेथड कॉल करनी पड़ेगी गेट पेंट के द्वारा, तब जाके ये अपना ड्रॉ होके आएगा लीनियर फैशन में। देखो आया लीनियर, रेड और वाइट दो कलर दिए तो वो दो ही कलर आ रहे हैं, रेड वाइट। अब देखो हमने यहाँ पे वो जो टाइल मोड दिया है वो क्या दिया है, मिरर दिया है। मिरर का मतलब क्या कि वो देखो रेड से शुरू हुआ और वाइट हुआ तो वापस वाइट से शुरू होके रेड जाएगा। हमें ऐसा करना है कि रेड से वाइट, वापस रेड से वाइट, वापस रेड से वाइट। तो उसके लिए क्या करना होगा, मिरर की जगह रिपीट से क्या होगा, वो जो इफेक्ट है उसकी वाइट का पोर्शन ज़्यादा दिख रहा है वहाँ पे वो रेड वाइट रेड वाइट रेड वाइट इस तरह से आएगा। रेड वाइट वापस रेड वाइट वापस रेड वाइट। पहले क्या था, रेड वाइट वाइट रेड, रेड वाइट वाइट रेड, ये लीनियर ग्रेडियंट है। वैल्यू चेंज करके देखते हैं, एक्स वाई 0 0, एक्स 1 0 और एक्स वाई 100। लाइंस आ गई पूरी हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ये लाइन पूरी एक्स पहले भी वही था और एंड में भी वही है, इसलिए। आप लोग भी इस तरह से ट्राई कर सकते हो, अलग अलग वैल्यूज़ देके
आउटपुट में क्या चेंज हो रहा है उसको आप आइडेंटिफाई करके समझ सकते हो कि हाउ इट वर्क्स। ठीक है, देखो पूरी हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गई क्योंकि एक्स सेम दिया है। एक्स सेम देने की बजाय सपोज़ मैं वाई सेम देता हूँ, वाई यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी वाई 0 कर देता हूँ और एक्स को 50 कर देता हूँ। तो अभी वो लाइंस वर्टिकल हो जानी चाहिए, जो लाइंस अभी हॉरिजॉन्टल आ रही है वो वर्टिकल्स हो जानी चाहिए। वर्टिकल क्योंकि वाई सेम दिया है, एक्स बदल रहा है। ओके, ये है अपना लीनियर ग्रेडियंट। हम देखो इसमें कलर की बात की हमने, कलर्स जो अभी मैंने 2 ही दिए हैं उसकी जगह पे हम यहाँ पे कलर का एरे पास कर सकते हैं, न्यू इंटीजर एरे, फिर कर्ली ब्रैकेट्स कलर डॉट रेड, कलर डॉट वाइट, फिर कलर डॉट ब्लू, कलर डॉट ब्लैक। 4 कलर दिए, ठीक है। और एक आर्ग्यूमेंट यहाँ पे कम पड़ रही है, एरे के बाद शेडर और टिल्ट मोड, एरे के बाद शेडर और टाइल मोड तो हमने दिया है। लीनियर ग्रेडियंट 4 इंटीजर भी दिए हैं और एरे भी दिया है। अच्छा, ये कंस्ट्रक्टर उसके समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे लग रहा है एक आर्ग्यूमेंट हम यहाँ पे मिस कर रहे हैं, वो हमें वापस लिखनी होगी। यहाँ पे क्या आएगा? अच्छा, नलेबल फ्लॉट पोजीशंस। वो पोजीशंस क्या होगी? पोजीशंस क्या होगी? पोजीशंस, नलेबल फ्लॉट पोजीशंस, वो नल रख देते हैं। उसके बाद शेडर डॉट टाइल मोड डॉट रिपीट। देखते देखो कितने सारे कलर्स आ गए, रेड, फिर वाइट, फिर ब्लू, फिर ब्लैक। रेड, वाइट, ब्लू, ब्लैक, 4 कलर्स में आ गए। और कलर भी जोड़ सकते हैं इसमें अपने, भी सपोज कि लिख देते कलर डॉट येलो, आ जाएगा। ठीक है, कोई चिंता नहीं है, चाहो जितने कलर्स लिख सकते हो यहाँ पे। कलर डॉट, बहुत सारे कलर्स हैं आपके पास। ब्लैक तो लिखा है, ग्रीन। तो इस तरह से ये लीनियर ग्रेडियंट बन गया। और उसी तरह से हम रेडियल ग्रेडियंट भी बना सकते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रैक्टिकल में कि भाई एक आप स्पिनर बनाओ, उसमें फिर स्पिनर के नीचे एक शेप होना चाहिए, शेप ड्रॉ क्या आता है, और स्पिनर में जो आप आइटम्स होती है वो ग्रेडियंट्स के ऑप्शंस, लीनियर, रेडियल और स्वीप, जो भी आइटम सेलेक्ट करेगा उस तरह का इफेक्ट जनरेट होना चाहिए नीचे वाले शेप में। ये देखो बहुत सारे कलर्स आ गए। ओके, अब हम देखते हैं रेडियल ग्रेडियंट्स, मतलब कि वो सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर फैशन में फिल करता है। तो उसके लिए हमें क्या देना होगा? एंगल देना होगा। देखो यहाँ पे रेडियल ग्रेडियंट का ऑब्जेक्ट बनाया है, तो हम ये जो लीनियर वाला है उसको कमेंट करके रेडियल ग्रेडियंट, ठीक है, अपना ये रेडियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू न्यू रेडियल ग्रेडियंट, उसमें आर्ग्यूमेंट्स कौन कौन सी आएगी? सेंटर एक्स, सेंटर वाई। तो सेंटर एक्स, सेंटर वाई क्या देंगे हम? सपोज कि 50 देते हैं और रेडियस देते हैं अपने 25। देखते क्या होता है। फिर कलर इंटीजर एरे, न्यू इंटीजर एरे। अब एरे शुरू में दे देता हूँ मैं, कलर डॉट रेड, कलर डॉट वाइट। 2 कलर अभी रखता हूँ मैं। उसके बाद ये स्टॉप्स उसके
नल और टिल्ट मोड शेडर डॉट टाइल मोड डॉट रिवर्स मिरर दे देते हैं। ठीक है, अब ये जो हमने बनाया रेडियल ग्रेडियंट उसको यहाँ पे हम सेट कर देते हैं, रेडियल ग्रेडियंट। ठीक है, रेडियल ग्रेडियंट। अब रन करके देखते हैं क्या होता है। आया सर्कुलर फैशन में, लेकिन उसका सेंटर पॉइंट जो है वो हमने क्या दिया था, सेंटर पॉइंट हमने दिया है 50-50, इसलिए अब इसकी साइज़ कितनी है 200-200 और 50-50 उसमें कहीं पे जाएगा। अब उसको हम चेंज करेंगे तो ये जो उसका सेंटर है हमारा ग्रेडियंट का वो भी थोड़ा बढ़ेगा। अभी अब देखो ये कितना यहाँ से पूरा फिल हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, रेड वाइट रेड वाइट रेड वाइट, सॉरी हमने वो रिपीट दिया है ना मोड मिरर, तो अब क्या होगा रेड वाइट वाइट रेड, रेड वाइट वाइट रेड, और उसे हम अगर यहाँ पे मिरर की जगह पे रिपीट देंगे तो वो रिपीट होगा रेड वाइट रेड वाइट रेड वाइट। अभी क्या है रेड वाइट वाइट रेड, रेड वाइट वाइट रेड, थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। ये क्या हो गया पूरा शुरू से ही हो रहा है, स्मूथनेस उसमें ज़्यादा लगती है। ओके, तो रिवर्स वाला मिरर वाला सही था। ओके, अब ये जो पॉइंट्स है स्टार्टिंग पॉइंट्स, अब देखो रेडियस कम है इसलिए छोटे सर्कल्स बन रहे हैं। रेडियस में यहाँ पे 50 कर देता हूँ तो क्या होगा जो सर्कल्स है वो थोड़े बड़े बनने लगेंगे, सर्कल्स जो छोटे छोटे शुरू हुआ है वो बढ़ने लगेगा। है थोड़ा उसका सर्कल स्प्रेड ज़्यादा हो गया, और सेंटर पॉइंट जो है उसको मैं 100 दे देता हूँ, सेंटर पॉइंट को 100। तो बराबर सेंटर से वो शुरू हो रहा है। ओके, और ये कम अभी सर्कल्स दिख रहे हैं, थोड़ा कम करेंगे इसको तो ज़्यादा सर्कल्स दिखेंगे। अभी सेंटर एक्स वाई 100 दिया तो अपनी हाइट विड्थ कितनी है 200, तो 100 कहाँ पे आएगा, सेंटर में आएगा बराबर। वो अब इससे शुरू सर्कुलर फैशन में। कलर्स बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे आप रेड वाइट कलर डॉट ब्लू कलर डॉट ब्लैक, बहुत सारे कलर्स, 4 कलर्स दिए, चारों 4 आ गए। ठीक है, तो ये था रेडियल ग्रेडियंट। अभी तो इसका वाला कौन सा है, स्वीप ग्रेडियंट। ओके, स्वीप ग्रेडियंट्स, उसमें इसी तरह से ऑब्जेक्ट बनेगा। ओके, स्वीप ग्रेडियंट इज इक्वल टू न्यू स्वीप ग्रेडियंट, और उसमें जो आर्ग्यूमेंट्स है वो सेंटर एक्स सेंटर वाई 100 दे देते हैं। नॉन नल कलर्स, न्यू इंटीजर कलर्स, कलर डॉट रेड, कलर डॉट वाइट, फिर पोजीशंस नल, और उसमें वो रिपीट मोड नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे सेट करना है
sweep gradient. रेड से वाइट, रेड से वाइट, सेंटर पॉइंट जो दिया है वही आ रहा। ओके, 200 है तो उसका सेंटर पॉइंट 100 होगा। कलर बढ़ाते हैं तो इसमें अच्छा लगेगा। कलर डॉट ब्लू, कलर डॉट ब्लैक, कलर डॉट शान, कलर डॉट मजेंटा, कलर डॉट ग्रीन, कलर डॉट ग्रे, हो गया ये पूरा सभी कलर्स का संयोजन। तो ये हो गया स्वीप ग्रेडियंट्स। ठीक है, तो सब कुछ हमने अभी देखा। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं अभी यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अब हमारा ड्रॉएबल्स हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनिमेशंस, किस तरह से एनिमेशंस हम अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से एनिमेशंस है जो हम यहाँ पे एंड्रॉयड में यूज़ कर सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं। ओके, तो आज के इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। स्टे होम एंड स्टे सेफ।